साहिब जी जागो हर रंग लागो इस युग में सो कहियत है सुरा आप मुझने सगल वस तंगे जाका सतगुर पूरा सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन कहे पुरजा पुरजा कट मरे कबहू न छाड़े खेत एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जित सेवै सुख पाइयै सो साहिब सदा समाधियै जित कीता पाइयै अपना सा पहाड़ पूरी क्यों घालियै मंदा मूल ना कीजई दे लंबी नदर निहालियै जो साहिब नाल नहारियै तविहा पासा ढालियै किछ लाही उपर घालियै जो साहिब नाल नहारियै तविहा पासा ढालियै किछ लाही उपर घालियै परम सन्मानयोग धन धन शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पावन गोद विच जुड़ बैठी गुरु प्यारी साध संगत जीओ कलगीधर पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के लखते जिगर चार साहिबजादे माता गुजर कौर जी अनेका गुरु के प्यारे सिख जिन्हां ने 1704 ईस्वी दे विच इहो ही देसी महीना पो जिहदे विच शहादत के जाम पीते सन जिन्हां दी मिठी अते प्यारी याद विच ये लगातार लड़ीवार आप जी रोजाना गुरमत समागम दे विच हाजरी भरते हो। आओ उस लड़ी के तहत अज फिर आप सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन गोद विच जुड़ के बैठे हैं। सोदर रहरास पावन बाणी के पाठ तो उपरंत गुरमत विचारां का दीवान सजिया जिस विच आपां सतगुरु की पावन बाणी के विचार इतिहासक विचारां साझियां करनियां ने। आसा की वार बाणी दी 21 नंबर पौड़ी जिसका पाठ आप बड़े प्यार नाल सरवण कीता है। 474 नंबर अंक पे ये पौड़ी गुरु ग्रंथ साहब जी के विच सुभाईमान है। इतिहासक कोई भी घटना होवे हर घटना को असीं सतगुर की बाणी की कसवटी ते परख के अपनी जिंदगी में लागू करना है। जिन्ना भी इतिहास है जिन्नियां भी इतिहासक घटनावां ने जदों असीं सतगुर की बाणी पढ़ते हैं तो सतगुर की पावन बाणी सानूं जिंदगी जीउण की प्रेरणा बख्शिश करती है।
ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ, ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ, 40 ਮੁਕਤਿਆਂ, ਹੱਜੀਆਂ, ਜਪੀਆਂ, ਤਪੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਵੰਡ ਛਕਿਆ, ਦੇਗ ਚਲਾਈ, ਤੇਗ ਵਾਈ, ਦੇਖ ਕੇ ਅਨਿਠ ਕੀਤਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਧਿਆਨ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਧਿਆਨ ਧਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਕਿ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਆ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਈ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਕਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਰੇ, ਟੀਚਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਗੌਰ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹ 5 ਪਿਆਰੇ, 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਏ। ਕਿਸੇ ਅਸੀਂ ਡੋਲਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਓ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਓ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਓ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਲ ਕੇ ਪੌੜੀ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ। ਜਿਤ ਸੇਵਿਆ ਸੁਖ ਪਾਈਐ, 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 ਜਿਤ ਸੇਵਿਆ ਸੁਖ ਪਾਈਐ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਐ, ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਐ, ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਐ, ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਐ। ਜਿਤ ਕੀਤਾ ਪਾਈਐ ਆਪਣਾ, ਜਿਤ ਕੀਤਾ ਪਾਈਐ ਆਪਣਾ, ਜਿਤ ਕੀਤਾ ਪਾਈਐ ਆਪਣਾ, ਜਿਤ ਕੀਤਾ ਪਾਈਐ ਆਪਣਾ। ਸਾਕਾਲ ਬੁਰੀ ਕਿਉਂ ਕਾਲੀਐ, ਸਾਕਾਲ ਬੁਰੀ ਕਿਉਂ ਕਾਲੀਐ, ਸਾਕਾਲ ਬੁਰੀ ਕਿਉਂ ਕਾਲੀਐ, ਸਾਕਾਲ ਬੁਰੀ ਕਿਉਂ ਕਾਲੀਐ। ਮੰਦਾ ਮੂਲ ਨਾ ਕੀਜਈ, ਮੰਦਾ ਮੂਲ ਨਾ ਕੀਜਈ, ਮੰਦਾ ਮੂਲ ਨਾ ਕੀਜਈ, ਮੰਦਾ ਮੂਲ ਨਾ ਕੀਜਈ। ਤੇ ਲੰਬੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਲੰਬੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਲੰਬੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਲੰਬੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੀ ਹੈ। ਜਿਉ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਾ ਹਾਰੀਐ, ਜਿਉ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਾ ਹਾਰੀਐ, ਜਿਉ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਾ ਹਾਰੀਐ, ਜਿਉ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਾ ਹਾਰੀਐ। ਤਵੇਹਾ ਪਾਸਾ ਢਾਲੀਐ, ਤਵੇਹਾ ਪਾਸਾ ਢਾਲੀਐ, ਤਵੇਹਾ ਪਾਸਾ ਢਾਲੀਐ, ਤਵੇਹਾ ਪਾਸਾ ਢਾਲੀਐ। ਕਿਛ ਲਾਹੇ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀਐ, ਕਿਛ ਲਾਹੇ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀਐ, ਕਿਛ ਲਾਹੇ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀਐ, ਕਿਛ ਲਾਹੇ ਉੱਪਰ
पाई है, जित सेवे सुख पाई है। सो साहिब सदा संभाली है, सो साहिब सदा संभाली है, सो साहिब सदा संभाली है, सो साहिब सदा संभाली है। जदों गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के चारे साहिबजादे, माता गुजर कौर जी, अनेकों सिखां के जीवन को वेखीदा, इंज लगता है जिवें जिहड़ी बाणी गुरु पातशाह जी ने उच्चारण की है ते इन्हां गुरु के प्यारे सिखां ने प्रैक्टिकल जिंदगी जी के उन्हां शब्दों के अर्थ किए थे। इंज महसूस होंदा भी जो गुरु साहब जी ने कहा है, सिख ने सतगुरु जी के उन्हां पाए हुए पूर्णियां नूं अपनी जिंदगी में धारण किया है। असीं गल्लां कर रहे सी गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के चारे साहिबजादियां का जिहड़ा जीवन है, उम्र भावें सब तो वड्डे साहिबजादे की 14 साल है, पर उन्होंने 14 सालों में सब तो छोटे साहिबजादे की उम्र 7 साल है। इन्नियां घट उम्रां विच जिहड़े उन्होंने पूरने पाए ने, जो उन्होंने दृढ़ता है, जो उन्होंने गुरु नूं समझण दा तरीका है, दुनिया अंदर इदां दी कोई मिसाल नहीं मिलती। अज के दीवान में आपां जिथे सतगुर के पावन उपदेश को समझण ते विचारण का यत्न करना, कुछ चेहरे ऐसे ने, कुछ पात्र ऐसे ने जिहड़े कई बारी इतिहास के पन्नियां तो जदों असीं पढ़ते हैं, विचारते हैं, पासे रह जाते हैं, जिहड़े साडे तक पहुंचते हैं। जदों सिखां दी असीं गल करते हैं, महान गुरु के प्यारे सिख जिन्होंने साडे लई कमाल कुर्बानियां कीतियां। जदों असीं सतगुर की पावन बाणी को पढ़ते हैं तो गुरुदेव जी इत्थे कहते हैं, जित सेविया सुख पाई है। जिन्हों सेवन के नाल, जिन्हों सिमरन के नाल, जिन्हों याद करने नाल, जिहदी सिक्ख्या ते तुर नाल मनुख नूं सुख की प्राप्ति होती है। दुनिया के किसी मनुख नूं पुछ के वेखो, तू सुखी होना चाहना है कि दुखी होना चाहना है, हर एक मनुख का जवाब होएगा मैं सुखी होना चाहना। पर सवाल यह पैदा होता, सुख ते दुख की परिभाषा की है। किसी बंदे नूं अद्धी रात अपना घर छड्डना पै जाए, परिवार के 2-3 हिस्से हो जाण, उहदे जिंदगी च उहने कदी किसी का माड़ा ना कीता होवे, हर वक्त चंगा कर्म कीता होवे, ते समाज के मुताबिक दस्सिओ भला सुख है कि दुख है। समाज के लोग कहते बड़ा दुख है। परिवार के भी 3 हिस्से हो गए, परिवार चो एक जी का अंतला समा भी घर च नहीं आया। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ते इस महान जीवन को वेख के एक बारी बंदा हैरान हो जाता है। जिन्ने परिवार के जीने सारियां का अंतला समा वख-वख थावां ते आउंदा। वड्डे साहिबजादियां दा चमकौर साहब की गढ़ी विच, छोटे साहिबजादे सरहंद फतेहगढ़ साहब, गुरु तेग बहादुर महाराज उन्होंने ते मिसाल ही नहीं दुनिया पे मिलती। सीस पंजाब की धरती ते, धड़ दिल्ली की धरती ते। गुरु गोबिंद सिंह महाराज उन्होंने ज्योति जोत समाउण दा समा हजूर साहब की धरती ते। मैं गल सिर्फ ये कहना चाहना, सुख ते दुख की परिभाषा की है। किसी ते कोई इदां दी विपता पई होती, उन्हें कहना सी लै इन्ना चंगा काम करके मिलिया कि दुख, पर पुछ के देखो कि ये दुख है? साडे मुताबिक दुख है, पर पातशाह की बाणी दुख पता किहनूं मनदी है? दुख तद जां विसर है। दुख उदों है जदों विसरदा है। जिवें आपां गुरु अर्जन साहब का वाक पढ़ते, औखी घड़ी ना देखण देई अपना बिरद संभाले। वो अपने बिरद की संभाल करता, औखी घड़ी वेखण ही नहीं देता। फिर गुरु अर्जन साहब महाराज दत्ती तवी ते बैठे ने, देग में चौबाड़ा खादा। देग में चौबाड़ा खाना, शीश ते तत्ता रेता पैना, लोह के उत्ते बिठाउणा,
शरीर छाले छाले हो जाना, कि ये समाज मुताबिक दुख ने। बाणी दुख किहनों मनदी है? दुख विछोड़ा, एक दुख भूख, एक दुख सख्त वार जम दूत, एक दुख रोग लगे तन धाए वैद न भूलै दारू लाए। हुण इत्थे शब्द है जित सेवे सुख पाई है, जिहनूं सेवन दे नाल जिहदी सिੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਏ। ਉਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ हर वस्तु ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ। ਘਰ 'ਚ ਸੋਨਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਭਾਲੀਦਾ, ਕੱਪੜੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਤੂੜੀ ਪੱਠੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਰਸੋਈਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਖੰਡ ਪੱਤੀ ਘਿਓ ਤੇਲ ਜੋ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਡੱਬੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੰਭਾਲਣਾ? ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਬਰਤਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਇਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਹੈ। ਹਾਣ ਹੱਟ ਕਰ ਆਰਜਾ, ਸੱਚ ਨਾਮ ਕਰ ਵਠ, ਸੁਰਤ ਸੋਚ ਕਰ ਭਾਣਸਰ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿਸ ਨੂੰ ਰੱਖ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਕਮਾਲ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਮਝ ਖਸਮ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਕਾ ਖਸਮ ਹੈ। सच खसम है, ते खसम नूं संभालना कित्थे है? सच नूं संभालण लई की चाहिदा? सुरत रूपी भांडा। जित सेवे सुख पाई है, सो साहिब सदा संभालिए। वो साहिब केड़ा? खसम छोड़ दूजे लगे डूबे से बन जा रहा। खसम की है? सच सबना का खसम है। सच रूपी खसम नूं संभालण लई की चाहिदा है? भांडा। केड़ा भांडा? सुरत सोच कर भांड साल, तिस विच तिस नूं रख। जिन्हां दे दिन मना रहे हैं, देखो जदों साडे इतिहास असीं सुणाउने आ जां सुणदे आ ना, गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं इंज पेश कीता जांदा कि उन्हां ने इस्लाम दी जड़ पढ़ दी। इदां दे शब्द बोले जांदे, बल्कि गुरु साहिब जी दा सिद्धांत किसी इस्लाम दे उल्ट नहीं है, किसी मजहब फिरके दे उल्ट नहीं है। सिੱਖੀ सिद्धांतों की लड़ाई किसी जाति फिरका नस्ल कुल जात के उल्ट नहीं है। गुरु साहब जी की जंग जुर्म के विरुद्ध है। जुर्म करने वाला कोई भी क्यों ना हो। जे गुरु साहब इस्लाम के उल्ट होंगे तो गनी खां ते नबी खां गुरु गोबिंद सिंह को उजदा पीर बना के लैके जाते। सब तो वड्डी मिसाल गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के जीवन काल जी वापरी है। जदों गुरु गोबिंद सिंह महाराज सरसा नदी तो होंदिया होया कोटला निहंग खां के घर पहुंचते हैं। मुसलमान है तो बड़ा प्यारा सिख है। उत्थे गुरु गोबिंद सिंह महाराज कुछ समय लिए ठहरते हैं। पिछों बड़े साहिबजादे बाबा अजीत सिंह, क्योंकि एक जालमां नूं रोकण वास्ते बाबा अजीत सिंह ते भाई बचित्र सिंह पिछे खलोते हैं। इन्हां दोनों जाणियां ने जालमां दा डट के मुकाबला किया ते भाई बचित्र सिंह जख्मी हो जाते हैं। भाई बचित्र सिंह नूं जख्मी हालत विच बाबा अजीत सिंह कोटला निहंग खां दे घर लैके आउंदे ने। उत्थे गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी उस वक्त उत्थे ने। गुरु गोबिंद सिंह महाराज को पता है कि दुश्मन पिछा करता करता इत्थों तक पहुंच सकता। महाराज ने कोटला निहंग खां की ड्यूटी लाई, तुसी भाई बचित्र सिंह की सेवा संभाल करो, असीं इत्थों नाल सिख लैके ते अगे जाने। दुनिया अंदर इदां दी मिसाल नहीं मिलेगी। कोटला निहंग खां अपने घर भाई बचित्र सिंह जख्मी हालत विच है, उन्होंने अपने घर रखते हैं, उसकी सेवा संभाल करते हैं। उन्होंने बड़ी प्यारी बेटी है जिसका नाम इतिहास मुमताज करके आता है। पिछों फौज चढ़ी आ रही है, सूइयां नूं खबर मिल गई, क्योंकि विचे ही हुंदे ने जिहड़े खबरां देण वाले आ। कोटला निहंग खां दे उस घर नूं घेरा पा लिया, तलाशी लैण लगे ने। जिस कमरे में भाई बचित्र सिंह जख्मी हालत में पिया है, वो कमरे का दरवाजा बंद है। सिपाही कहते जी इधर कौन है? तो उस कमरे में एक भाई बचित्र सिंह सन,
दूजा कोटला निहंग खां दी बेटी मुमताज सी, कुवारी सी अजे अजे ਉਹਦਾ ਨਿਕਾਹ होना सी। सिपाही पूछते जी कौन है, कहते मेरी धी ते मेरा जवाई है जी। एक किरदार कित्थों लभोगे जी, इस्लाम के उल्ट प्रचार एक करैक्टर कित्थों लभोगे, किसी बाब च इन्नी गलती हुई अगे चले गए। सवेरे दिन चढ़ने तक भाई बचित्र सिंह मुमताज की मंगनी हुई सी। थोड़े समय बाद जो मुमताज को पूछा गया तेरा हुण निकाह करना है, तो उस धी का जवाब सी मैं हुण सुहागण हाँ, मेरा पति दुनिया तो चढ़ाई कर चुका है, मेरे बाप ने एक बार कहता कि मेरा धी जवाई पिया, मैं बचित्र सिंह की पत्नी हाँ। उस धी ने दोबारा ब्याह नहीं करा। 130 साल की उम्र हो के वो दुनिया तो जाती है करैक्टर कोई इस किरदार का कोई मुकाबला होएगा? इतने पता नहीं सी अपने रोल मॉडल किन्हां नूं बना के बैठ गए। उस धी का सत्कार अज भी सुनहरी अखरां विच लिखिया होया है। मैं सिर्फ ये दसना चाहना जिथे महान गुरु के प्यारे सिखां दी एडियां वड्डियां कुर्बानियां ने, निहंग खां की कुर्बानी किसी गल्लों उच्ची बोलो प्यारे घट नहीं, जिहड़ा अपनी कुवारी धी नूं भाई बचित्र सिंह जख्मी हालत विच है, वो कहना मेरी धी ते मेरा जवाई पिया। ये तो गल की मिलती है, कितनी लायक बच्ची होएगी बाप के मुंह चो निकले हुए वचनों को अखीरला सच मान लिया। इतने कई होएगा जिहड़ा इदां नहीं करेगा, धियो तुहाडे गल हाथ जोड़ के बेनती है, मां नालों वध कोई प्यार नहीं कर सकता। जिहड़ा आंदा ना मैं प्यार हो गया मैनूं, प्यो नालों वध प्यार कर लूं कोई? दोनों मेरे वीरों प्यो नालों वध कोई धी नूं प्यार करता होएगा? कोई भरा नालों अपनी भैन नूं वध प्यार करता होएगा? वो प्यार नहीं हुंदा। मैं गुरु की हजूरी च कहना वो कुछ समय की हवश हुंदी है। सिर नूं चढ़ियां हुई काम वासनावां ने जिहड़ियां वक्ती हुंदियां ने, समा पा के लह जांदियां ने। मां बाप कदी अपने बच्चों का बुरा नहीं सोचते, पर कुछ समय लिए अखां ते पट्टियां वज जांदियां। जदों इहो जिहियां असीं घटनावां पढ़ांगे, ये है बाबाणियां कहानियां पुत सपुत करें। ये दादियां परदादियां दी कहानियां पुत्रां नूं सपुत्र बना दिंदियां ने, नलैकां नूं लैक बना दिंदियां ने, विगड़ियां नूं सुधार दिंदियां ने। हर साल असीं साखियां इतिहास दीयां सुणदे सुणाउंदे आ, इन्हां साखियां चों अपनी जिंदगी च कुछ लागू करके वेखो। बाकमाल इतिहास है साडे गुरु पातशाह। एक नहीं आशिकी दूजा लगे जाए, नानक आशिक कंडिया साधी ही रहे समाया। आशिकोआ जरा सदा ही समाया रवे, गुर कृपा जे नरकों कीनी तेह ए जुगत परेशानी, नानक लीन भयो गोबिंद स्यों ज्यों पानी संग पानी। जदों इदां दी गल सानू समझ आएगी, साडी जिंदगी जीण दा तरीका निकला होएगा। सानू समझ आएगी पातशाह दी बाणी कहंदी की है। ते उस मुमताज दा सुनहरी अखरां विच नाम लिखिया गया, उन्होंने याद किया गया। वो एक मील पत्थर साबित हुई थी कि ऐदा दा किरदार भी धीआं दा बच्चियां दा हो सकता है। दूजी बीबी हरशरण कौर जिन्हें वड्डे साहिबजादे ते अनेकां गुरु के सिख चमकौर साहब की गढ़ी अंदर शहादत का जाम पी जाते हैं। ढंडोर जी आउंदा है, वो डगा इलाके दे विच उच्ची उच्ची बोलता है, बाकी गुरु गोबिंद सिंह ते उन्हां दे सिख ते उन्हां दे साहिबजादे असीं सदा लई खत्म कर दिते हैं। हुण उन्हां दे मुताबिक तां गुरु गोबिंद सिंह भी सदा लई खत्म हो गए। उन्होंने तो यहो सोचा कि चमकौर साहब की गली च उहदा बाद पता लगा भी गुरु गोबिंद सिंह महाराज का ये दुश्मनों के मूँह से बहुत वड्डी चपेड़ सी कि 6 महीनों तो वध आनंदपुर साहब नूं घेरा पाउण तो बाद भी ते एक खत जिते औरंगजेब के सैन सन, कुरान दीआं कसमां खा के, गौ दीआं कसमां खा के, सारा कुछ करन तो बाद आनंदपुर का किला भी खाली करा लिया, पर वो गुरु गोबिंद सिंह नूं फड़ नहीं पाए। ये बड़ी वड्डी समय की सरकार की हार सी। आ किसानी अंदोलन च ना जिहड़े 3 काले कानून किसानां ने वापस कराए ने, किते ना किते सिरा
साडे सिख कौम के वडमुले इतिहास नूं जानदा है। किते ना किते दृढ़ता पूर्ण विश्वास भरोसा जिहड़ा सी अगवाई एक गुरु के इतिहास गुरु दियां बाणी ने की भी जिहड़ी जुबान ना पीएम ने अंदोलन जी भी शब्द बोले सी ते उससे जुबान ना शब्द कहने पे मैं समुचे किसानां ते किरतियां कोलों मजदूरां कोलों हाथ जोड़ के माफी मंगदा हां ते असीं तिन्ने काले कानून वापस लेंगे। ये कोई गल छोटी नहीं, ये गल बहुत वड्डी सी भी केंद्र सरकार वालों पास किए हुए ते मार के उत्थे लगातार अंदोलन लड़िया और लफ्ज उहदे मूंह च वापस पाए। इहदा अर्थ गुरु साहब की सिक्ख्या गुरु साहब की बाणी की प्रेरणा सानू अंदरों मजबूत कर दी। अज पता नहीं असीं की कच कर सुनी जाने अं तां जो कुछ साडा जिद्दां दा कल्चर है जो कुछ असीं सुनते हैं वेखते हैं साडा मन भी उदां दा बनी जाता। एवें नहीं सी गुरु पातशाह ने आख्या सी मेरे माधो जी बोलो सारे सत संगत मिले जिहड़ा मन है ये विचार ध्यान ना सुने इस गल मन की है। पढ़िया लिखिया मेरिया बच्चियां मेरिया भैणां मेरे नौजवान वीर बैठे मन की है। मन है विचार जिवें सौखा समझो एक सीमेंट की कंध जी डिग पवे दो चार इट्टां लै जाण ਉਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ सीमेंट नाल क्योंकि सीमेंट की कंध सीमेंट नाल ही रिपेयर होएगी। जे कच्ची कंध मिट्टी की डिग पवे ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ। ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਉਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਵੀ ਉਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਸੋਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਤੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਵੀ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਭਾਵੇਂ ਅੱਗ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਸਾਨੂੰ। ਜੇ ਲੋਹਾ ਟੁੱਟੂ ਆ ਲੋਹੇ ਦੇ ਸੰਗਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜਦਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਫਟ ਜਾਏ ਨਵਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਰਫੂ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਕੱਪੜੇ ਚੋਂ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਫੂ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੱਪੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ 200 400 ਰੁਪਏ ਮੀਟਰ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੱਪੜਾ ਇਹਨੂੰ ਰਫੂ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਕੱਪੜੇ ਚੋਂ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਰਫੂ ਕਰਦੇ ਜਾਨੀ ਕਿ जे मिट्टी की कंध बनी है तो उन्हें मिट्टी नाल ही रिपेयर करना मन की है शब्द तेरी रिपेयर भी शब्द नाल ही होगी। इसे करके आख्या सी गुर का शब्द बनावो ये मन। जे सानू को पुछे असीं गुरुद्वारे की लेना आउंदे आ असीं अपना मन बनाउण जिवें आपां नहीं कहते तू जाना नहीं उधर नहीं मेरा मन नहीं करता इसदा मतलब की भला यानी कि मेरे विचार नहीं है हुण मेरा मन कर आया मैं चलिया उधर थोड़े विचार बदल गए ना मेरा नहीं मन करता मेरा उधर मन नहीं मिलता यानी कि मेरे हुण उहदे नाल विचार साफ संगत जी ध्यान ना सुनियो। पति पत्नी लावा हो जान ये लावा होनी है पति पत्नी नहीं एक जोत विचार मिलने बहुत जरूरी है। जे विचार ना मिलते हुण कोठियां भावें 5 ਦੀਆਂ 10 होण जिन्ना मर्जी घर दे विच पैसा सोना हीरे जवाहरात हो जे विचार ना मिलते हो तो कई औरत अक्की ये गल कह दिंदी है इहदे नालों मेरा मां बाप किसी दिहाड़ी करने वाले दे लड़ ला सवेरे कमा के शामी मैनू लिया के कम से कम असीं दुख सुख ते बोलदे सानू कि नहीं लगता वो किड्डी वड्डी कोठी है किदां लड़ियां जगमग जगमग करदियां किदां घर च चानण है ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਲੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬਈ ਇੱਕ ਜੋਤ ਧਨ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਆਖੀਆਂ ਬਹਿਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ एक जोत दोए मूर्ति धन फिर कही है सोए। एक जोत का अर्थ है विचार एक होने बहुत जरूरी है जिहड़े अज नहीं है। ये विचार होने बहुत जरूरी। ये तो पता लगता कि इतिहासक घटनावां सानू अंदरों कायम कर दियां सानू अंदरों प्यार करदियां। हर साल आप सुनते हैं साहिबजादे नीहां चने गए वो मैदान जंग विच लड़ के शहीद होए। सवाल ये पैदा हुंदा उहदे चों मैं सिੱਖਿਆ की मैं अपने पल्ले की बता। सवाल ये वो तो कर गया कुर्बानी
वो ते महान कुर्बानियां कर गए। वेखिया है जाना भी असी की कीता, असी उन्हां घटनावां चों की सिੱਖਿਆ। जे मैं वारस होवां बाबा फतेह सिंह दा, वारस होवां बाबा जोरावर सिंह दा, ते वीरवार हाथ विच फड़ी होवे तेल वाली सीसी, ते मैं किसी कबर ते किसी मठी ते दीवा जगाउण जांदा होवां, ईमानदारी नाल जवाब दिओ, मैनूं वारस अखवाउण दा हक है? होवां मैं बाबा जोरावर सिंह ते बाबा फतेह सिंह दा वारस, ते देहधारी बाबे नूं उच्चे थां ते बिठा के ते उहदे पैरां विच आ बैठा होवां कि मैनूं बाबा फतेह सिंह दा पैरोकार अखवाउण दा हक है कि मैं उन्हां दे पाए हुए पूर्णियां ते तुर रहा हां? आ हुण 22 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ होणियां ने, हुण तो तैयारी शुरू हो गई है कि आज साडे विच ये अणख गैर स्वैमान है। असीं कोई चंगी लीडरशिप, कोई चंगा नेता जे फिर शराब दीयां बोतलां ते फिर असीं लीडरां दे पैरां विच जाके बहना, कित्थे उन्हां दा महान इतिहास ते कित्थे असीं झंडियां। आ हुण फतेहगढ़ साहब दे दिन चल रहे हैं, कुटावा होएगा जिन्होंने साहिबजादियों बारे पता होगा। अजकल तो ना व्हाट्सएप पे साहिबजादियों की फोटो भेज के कहते हैं साहिबजादियों के शहीदी दिन चल रहे हैं, 2 अखर नहीं लिख पा सकते कि साहिबजादियों ने कुर्बानियां किहड़ियां कीतियां। 25 दसंबर नूं क्रिसमस डे आउंदा, किद्दां बच्चे तैयार करके स्कूलों च भेजदे आ। बाहरलियां देशां साडियां पंजाबियां नूं ओह मैसेज करदे, साडे पंजाबी उन्हां नूं करदे। करो, चलो तुसीं उस कल्चर च रहिंदे हो, तुसीं उस माहौल च रहिंदे हो, तुहाडे नाल ओहदी कोई साझ है, मैं तो मना नहीं करदा। पर जे तुसीं भी 22 दसंबर तो लैके 27-28 दसंबर का इतिहास लिख के 5-7 लाइनां च इंग्लिश विच उन्हां नूं अग्गेों मैसेज कर दिओ कि वो पढ़नगे नहीं, वो याद नहीं करनगे। तुहाडी कौम च एडे महान योद्धे होए आ, पर गल फिर होई आ, अगलियां ने अपना लोहा भी बेच लिया, सानू अपना सोना भी दुनिया अगे रखना लाया। सानू ते अपना सोना कितना कीमती इतिहास है साडा, दस पाए हैं जी। एक गल पक्की है, जिदन साडे बच्चियां नूं बाहरों किसी ने दस दिता ना कि तुहाडे घर विच एडे योद्धे पैदा होए सी जिन्हां 7 ते 9 साल की उम्र च सूबे सरहंद की कचहरी च बाकमाल सवाल जवाब कीते सी, उदन साडे बच्चे पक्की गल है सानू लाहनत पाउणगे। वो जमीन 2 किले घट दे जांदा, कोठी वड्डी दी जगह छोटी दे जांदा, कारोबार वड्डी दी जगह मैनू छोटा दे जांदा। पर मेरे बाप, मेरी मां, मेरी दादी मरण तो पहला कम से कम मैनू अपने इतिहास बारे ते दस जांदी। ये किहने दसना जी? ये किहदी जिम्मेवारी है? बोलो साथ संगत, मां बाप। जो घर च असीं नाम लेना ही नहीं, मैनू अज भी याद है टोरंटो की गल है, उत्थे डीसी गुरुद्वारे दीवान चल रहे सी, उत्थे एक बाबा जिहदे काफ़ी पैरोकार रहिंदे ने, सुन लैनी उन्होंने एक कथा, उन्होंने भी ये मैं कई बार अगे भी गल की है, क्यों मान नाल गल दसन। वो कहते जी साडे इत्थों बाबा जी पंजाब संगत लैके जाते हैं, यानी कि बाबा के पंजाब च संगत उत्थों आउंदी है, समझ तुसीं भी जानी है गल दी होती। वो उत्थों स्पैशल प्लेन आउंदा कनेडा तो, दिल्ली एयरपोर्ट ते उतरदा, अग्गों बाबियां दीयां बसां जांदियां, उत्थों एयरपोर्ट तो लैके सीधियां बसां डेरे जांदियां। एक महीना वो डेरे रहिंदे आ, 1.5 महीना डेरे रहिंदे आ। उत्थे बहुत वधिया उन्हां दे घर बने होए आ ते बनाए भी विदेशियां ने आ। महीना 1.5 2 महीने डेरे सेवा करके ते फिर उत्थों बसां च बह के फिर दिल्ली एयरपोर्ट तो फिर वापस आपू अपने घरां नूं परत जांदे ने। वो मैनूं मान नाल दसन, दिन वेले उन्हां दस्सिया, मेरे को रहा नहीं गया, फिर मैं रात के दीवान च गल कही, मैं कहा जी डेरे तो बिना होर किते नहीं जाते तुसीं? कहते नहीं डेरे चो मुड़ आईदा वापस, क्योंकि महीना 1.5 2 महीने असीं इत्थे छुट्टियां लईआं होंदियां, उत्थे जाईदा, सेवा करीदी आ, पाठ करीदे आ, सीधियां बाबियां दीयां बसां आउंदियां, उत्थों वापस मुड़ आईदा। मैं कहा फिर जदों फतेहगढ़ साहब लागों बस लंघदी होनी आ, बाबा फतेह सिंह गुरु गोबिंद सिंह एक गल ते पक्का कहंदे होणे कि महाराज इन्हां तो मैनूं वार के गया, इन्हां दे बदले साडा संस्कार भी नहीं कीता। मैं कहा पक्की गल है, बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, गुरु गोबिंद सिंह एक गल तो पक्का कहते होंगे, इन्हां बदले
ਜਿਹੜੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਖਾਕ ਛਾਣਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰਕਰਮਾਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਚੰਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਹਿੰਦ ਮੈਂ ਤੀਰਥ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖਾਉਣ ਲਈ? ਪ੍ਰਾਤਮਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਨਹਾਉਣ ਕੋ ਤੀਰਥ ਘਣੇ, ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪੂਜਣ ਕੋ ਬਹੁਤ ਦੇਵ, ਪੂਜਣ ਲਈ ਕਿਤੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਮੂੰਹ ਕਰੋ ਉਧਰ ਹੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੈਠਾ। ਨਹਾਉਣ ਨੂੰ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਘੱਟ ਨੇ? ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਓ। ਨਹਾਉਣ ਕੋ ਤੀਰਥ ਘਣੇ, ਮਨ ਬੋਰਾ ਰੇ, ਪੂਜਣ ਕੋ ਬਹੁ ਦੇਵ, ਪੂਜਣ ਲਈ ਕਿਤੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਥੋੜੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਜੋਗੀ कहता एक हिंद में तीन है, बोलो सारे यात्रा के लिए। मैं कहा कभी सुनिया पंक्तियां तुसी? मैं कहा कभी डेरिया जो तुहानू ये पंक्तियां को सुनाओ? अगलियां नू पता है जिदण ये पंक्तियां असी सुनातियां साडियां डेरियां दियां रौनकां घट जाणियां ते फतेहगढ़ साहिब दियां रौनकां वध जाणियां। दस्सो जे मैं गलत होया ते गड्डी च बहन तो पहला मेरा घुट फड़ लियो, घुट के दस भी सुना के जा तू गलत बोले। अज होया कि नहीं होया? बोलो मेरियो भैनों। डर पाया सानू, फतेहगढ़ साहब चमकौर साहब वालों जान लग पैना, फिर साडे डेरे मस्सिया पुन्निया ते मत्थे टेकण पाउण आऊ। ओदा डेरे चलदे इस करके इत्थे मस्सिया लगदी, बोलो भाई इत्थे पुन्निया लगदी, इत्थे मस्सिया ते इन्ने इशनान करो, इत्थे पुन्निया ते इन्ने इशनान करो, इत्थे संगराम ते आओ, इत्थों दुध मिलदा ते इत्थों पुत्त मिलदा। मैं सब तो पहला तुहाडा धन्नवाद करदा, जदों मैं आण के तुहाडा पोस्टर पढ़िया ना, सच्ची गल कहना मन खुश होया एक पक्षों ते भी शुक्र है किते पिंडां दीयां कमेटियां, पिंडां दे वीर इदां जागे ते रल के असीं अपने गुरु दे साहिबजादियां नूं, महान सिखां नूं याद कर लई, उपराले कर। जे पिंडों पिंडे लहर शुरू हो जाए ते माफ करना असीं किसी डेरे को जावांगे, साडा तां घरे घर भुलाउण लग पिया। साचे साहिबा क्या नहीं रे जी नलाज लाज तो नहीं, हे नलाज जीव तेनू लाज नहीं आउंदी, हर तज कत कहूं के जाही, जां को ठाकुर ऊंचा होई पर कर जा, सो जन पर कर जात न सोही। पुत जाके किसी होर दे घरों चीज मंगे, जाके प्यो की आंदा ओ तू मेरी नक कटाती, तेनू शर्म ना आई? तू मेरा पुत हो किसी होर कोलों वस्तुआं मंगी जाना, होवे पुत गुरु गोबिंद सिंह दा, होवे पुत तू गुरु दा। इदां जाके बाबे अगे झोलियां अड़ दे के नहीं अड़दे, बोलो सास इदां बाबे अगे झोलियां, बाबा जी कुछ खैर पा दियो जी। बाणियां दी दद्दा दाता एक है, गुरा एक दे बुझाई अगे सो मैं सब जग फिर मैं देखिया, हर इको दाता। किते बाणी दो दाते लिखे तो फिर दो दाते लिखे नहीं, फिर आप उसे लैन की जाने। अच्छा सुन लियो को वाक होर गुरु पंजवें पातशाह तो आसी राम का शब्द है, जी मैं भूलता नहीं, 600 कबूल एक थां ते होनी है, अवर जतन कर रहे बहुत देर। जे तू बाकी जतन कर रहा ना, तेल तेल नहीं कीमत जानी। क्यों सास तेल कितना होता जी? करो इधर चुटकी भरिए किन्ने के दाने तेल दे आ जाते पर चुटकी, किन्ने दाने चुटकी दे विच इदां तुसीं लाओ, किन्ने दाने आ जाणगे। तेल कितना बरीक हुंदा है, कहंदे तेल जिन्नी भी वैल्यू नहीं है जे तू अपने गुरु नूं छड्ड के पासे जा। मैं कहना तेल जिन्नी भी वैल्यू हुंदी ना, फिर भी जान विच कोई हर्ज नहीं सी। इस तेल तेल नहीं कीमत जानी। मैं तान दीवान तू है मेरे स्वामी, तान कहते ताकत नूं, दीवान कहते आसरे नूं। तू हाँ मेरा, मैं तो ताके अरदास
मैं होर थां नहीं, मेरे वास्ते होर थां ही है नहीं कोई। मैं होर थां नहीं, जिस पै करो बेनंती, मेरा दुख सुख तुझ ही पास। जिस सिख ने बाणी पढ़ी ते विचारी हो पासे जाने की लोड़ पऊ साध संगत जी, किते पासे मत्था टेकांगे, किते पासे जाके सिर झुकाउण दी लोड़ पऊगी। साहिबजादियां दे इन्हां महान दिनां च एक सबक पल्ले बन लो, कियामत दी विपता विच भी वो अपने गुरु का लड़ नहीं छड्डदे। असीं तां चंगे भले खांदे पींदे अपने घर। साडे ते घर पुत्र का विआह होवे, 2-3 साल औलाद ना होवे ते दब देरियां नूं अरदासां कराउण तुर पैंदे। घर च कोई बीमार होवे, हॉस्पिटल की बजाय पुछना वालियां को तुर पैंदे भी उत्थों पुछ पवा लो, होदा आ शुगर नहीं कंट्रोल आ रही, होदा कोई बाबे कोलों मंत्र बल। लोग साडे बाबियां को तुरे फिरदे। हद हो गई, किहड़े बंदे असीं पढ़िया लिखिया वर्ग भी, मझां दुध नहीं दिंदियां, फसल नहीं हुंदी, गड्डी नहीं ठीक चलदी, साडे ये लोहा ही माड़ा। इदां करिए सर्विस कराउणी नहीं, लोहा माड़ा। घरों पैसे दे के भेजे, सर्विस कराया, वो फक्का मार आंदा, घरदियां नूं मैं सर्विस करा लिया, गड्डी जा हो जाती है, घरदियां दे लोहा माड़ा। ये नहीं आंदे साडा जवाक माड़ा। बोलो, कई और घर के जवाब को भेजे जा सर्विस कराया, वो अगला आंदा जिन्ने की सर्विस होने 3 सूटे बजने दे। गड्डी नूं क्यों होंदे आपे पापा राज खंजल होंदा करू। वो जो पापा बीबी जाते किते घूमण, वो गड्डी राह च हिलदी नहीं आंदे। ये असल च ना पर लोहा बारी नहीं आया, ये नहीं पता भी इहनूं 5 साल हो गए, ਇਹਦਾ तेल किसी ने बदलिया ही नहीं। वो तेल अपने बदलदा, उन्हें नोट साड़ के काले करते हैं। सच जाने हुए घर के हालात है कि नहीं है। वो तुसी चोरियां दी गल्लां करदे जे, कई अपने घर च चोरी करी जाते हैं। कई बंदे ना घर च किदां चोरी करते, हुण एग्जाम्पल सुनियो। वो किदां चोरी करते हैं, घर बन लिया, रेता दी सलाइयां 5 ट्रालियां, उन्होंने कहना तू भी 7 छुट्टियां, मेरा तेरा तरला ही है तेरे की मेरा। ढेर च किहड़ा पता लगना, उन्हें किहड़े मिलनियां पैसे मैं घर दे 7 दे लैने, तेनू मैं वो आंदा नहीं, मैं झूठ नहीं बोलना, मैं कोई 7 की जगह 8 कहूँगा, मैनू 6 की दे दी। वो भी कहना मैं नवी दे विचों मैनू ते कुछ नहीं मिले। बंदा अपना घर लटाउण लई भी प्रवान हो गया। कई डेयरी दुध पाउण जांदे आ, महीने बाद पैसे का हिसाब करना, हुण घरदियां ने डेढ़े छड़े पाई जाते हैं, वो विचों 1000-500 विचों अपना ठुंगा मार आउंदे आ। हुण अंदाजा लाओ, जिन्हां व्यक्तियां दे घर च उन्हां तो लौक लाउणे पैण, समझ ली बंदिया तू पशुओं वाली जून भोग रहा, तू ते मनुख है ही नहीं। मैं शर्म वाली गल है, ये जकारे ते सिद्ध हुंदा भी घरां च पीड़ित इदां हो गया अपने घरां च। हम लोग ये भी आप अपने घरों जाइए ना बाहर, कि आप कभी गड्डी च उतर के फिर जाने, आप लॉक नहीं लाया, वो नहीं कोई गल नहीं। कई कैमरे लाने पे घरां च, कैमरे भी लाए, लॉक भी लाए। हुण मैं ये नहीं कहता इकल्ले बंदियां तो ही आ, कई बीबियां तो भी लाने पे। हाँ तुसीं गुरुद्वारे वेख लो, 2 लॉक लगे मोटे मोटे। मतलब हर बंदे ने ध्यान के गोल च पैसा पाया। मैं ये नहीं कहता हर गुरुद्वारे की गल करदा, गुरुद्वारे में भी बड़े बड़े लॉक क्यों लाने पे, क्योंकि सारे बंदे मत्था टेकण नहीं आउंदे। नहावन चले तीर्थ हो सकदा, अपने में ते कोई चोर नहीं बैठा होना, वो चोर का ये टाइम हुंदा ही नहीं है। अपन सारे टेकण आए हैं। ये तो समझ आया कि जे गुरुद्वारियां विच भी गोरखां नूं लॉक लाने पैण, सानू घरां च अपने वैसे ट्रेनिंग इदां दी दिओ कि बच्चे नूं भी कई वारी समझा दिओ, तेरे हुंदियां मैनूं लॉक लाउण दी लोड़ ना पवे। मैं तेरे तो लॉक क्यों लावां मेरे पुੱਤ, आ तेरे सामने पै रही थे, पुछ के लै मेरे कोल। ते कईयां दे घरां दा किरदार ये आ, वो कहंदे नौकर भी साडे घर तुरे फिरदे, कदी लॉक नहीं लाया, सानू अपने नौकरां ते भी भरोसा है। ते कईयां दे बच्चियां ते भी विश्वास नहीं बन पाउंदा। गल करैक्टर दी है प्यारिओ, गल किरदार दी। एक किरदार ते करैक्टर बाजारों नहीं मिलता, ये जिंदगी च उच्ची बोलो बनाउणा पैंदा। कईयां ने अपने नौकरां ते इन्ना विश्वास रखिया, कहंदे स्टाफ ते भरोसा है जी सानू,
सानू पता है ये कोई बेईमानी नहीं करते। इस करके गुरु पातशाह ने इन्हां महान योद्धियां तो यह सबक जिंदगी च लेना है। इन्हां वर्गी दृढ़ता, इन्हां वर्गा भरोसा, इन्हां वर्गा विश्वास, इन्हां वर्गे जिहड़े लियाकत वाले गुण काश किते साडे साहिबजादियां साडे बच्चियां विच भी आ जाए। असीं भी प्यार नाल अपने घरां विच रहना शुरू कर दईए। असीं भी महसूस करिए किद्दां उन्हां ने परख दीआं घड़ियां विचों भी डोले ते घबराए नहीं, असीं ते खांदे पींदे भी घबराई करते। जे पता मैनूं भी आह काम कीता इहदा नतीजा आ निकलना, फिर मैं प्रण करा भी अज तो बाद गलत रस्ते ते मैं फिर कैमरे की लोड़ दो, फिर तो समझ आ जाओ राखा एक हमारा स्वामी सकल घटांगा अंतर्यामी। राखा अज तुसीं अपनी बच्चियां के सामने अपनी मां की घर च बेइज्जती करदे जे, इहनूं लंबा सोचो। जे अज मैं मां की बेइज्जती करदा ते कल नूं अपनी घर वाली नूं तैयार रखो, तेरे अगे भी तेरे बच्चे इदां बोलणगे। जे अज बांह फड़ के बापू नूं धक्का मार के बाहर कढदा ना ते दे लंबी नजर लिया लिए, चेता रखिया अखर तेरे बच्चे अंदर उतर रहे आ। अज तो 50-70 साल बाद तैयारी काका बोलो जी। कहानी नहीं आती, कहते भी कोई बंदा दुखी बड़ा सी अपने बच्चों तो, बच्चे आते भी बच्चों भी ऐ करो भी जे बहुते तंग जो उन्होंने सुटन चले गए दरिया च भी बापू नूं करो ना जी, तो बापू जो सुटन लगे तो उन्हें काका थोड़ा जिहा गांह सुटी। आंदा क्यों? आंदा इत्थे मैं अपने प्यो नूं सुटिया सी। ਉਹਦੀ रूह कंबी आंदा शायद मतलब साडे खानदान ते प्रथा ही चली आउंदी है। उदों वापस मुड़ाया भी जे इत्थे इहने प्यो नूं सुटिया मैं इत्थे सुटिया तो मेरी वारी थोड़ी जी गाणी आऊ। फिर बसां विच नहीं लिखिया होंदा जी कहो जी कहा, बसां विच लिखिया होंदा भावें कनैक्टर टुट के पई जावे उहदा दूजिਆਂ नहीं लिखिया। जिवें बस ते ना ड्राइवर के उपरले बन्ने लिखा था उपरले बन्ने नो स्मोकिंग, ते एडी मोटी वीडियो ने मुंह च पाई हुंदी है फक फक नाल सब दूजा नंबर जी कहदी लिखिया था दूजिਆਂ भी। अच्छा रोडवेज दी बसां की दूजिਆਂ बसां दी बारी दे उत्ते लिखिया हुंदा ड्राइविंग ते शराब दा कोई मेल नहीं, ते बस ऐ जा रही। मतलब सानू ये लगदा भी ये दूजे लिए आ, नहीं ये मेरे लिए। मंदा भूल ना कीचे, मैं भुल के भी मंदा काम ना करा। देर लंबी नदर निहार दिया, देर लंबी नदर ऐ दूर तक वेख। लंबी नजर जेडे दूर तक वेखदे आ वो कदी भी गलत काम जो इदा आप सोचांगे साध संगत, फिर असी किसी के डर को गलत काम नहीं करांगे, फिर अपने आप सियाणे बन जावांगे। मैनूं कोई भी नहीं वेखदा। मैं तां चली तुसीं नोट करो तुहाडे जो कईयां दे धी पुत्त बाहर होंदे आ, ਜਦੋਂ रात को गड्डी के उत्ते सफर करते हैं ना, जो रेड बत्ती हो गई उनकी गड्डी अपने आप उन्होंने खिला दी। उत्थे भावें 1 मिनट की रेड बत्ती है, 30 सैकंड की है, 2 मिनट की है। अच्छा उन्होंने पता भी इत्थे आना किसी ने नहीं आ, पर वो उस चीज़ के आदी हो चुके। अपनी जगह पंजाबों को गया भी हो ना पढ़ देगा इदा कहते कि बोलो जी पढ़ दे कोई होंदा इदा कह भी काका अपनी मत अपनी खुराक हाँ जो तू कढ़ देगा इदा कही जाना तू दिन वेले भी इदा कि कह देना मैं मेरा $700-800 जो मैं हफ्ते का कमाना ना 1-2 सुधा जे तू फ्रूट लैवे ना कम से कम ज़्यादा नहीं 15-20 दिन एक निक्की फैमिली भी जे 200-400 का फ्रूट लिया तो 4-5 दिन लग जाएंगे 1500 का महीने का फ्रूट नहीं लगना तेरा तो कला नशा पी लेना तो पीने वाला कहता मैनू टेंशन बड़ी है बोलो अच्छा टेंशन कर दिया मैं लोगों के टेंशन के पिछे माई भी है टेंशन के घर च भाभी भी है टेंशन के बच्चों भी है ये बहाने नौजवान वीरों मैं हर स्टेज से एक बेनती करदा आप तुरदियां फिरदियां फैक्ट्रियां वां दुकाना वां नशे बेचने वाली जदों कोई तंबाकू बेचती है ना कंपनी सब तो छोटी उम्र का व्यक्ति चकते क्योंकि वो बड़े बंदे नहीं लाते अपने तां स्कूलों के बाहर उन्होंने खोखे क्यों होंगे भला भी जे कितने 5-7% बच्चे भी साड़ी पकड़ च आ गए अज 15 साल का बच्चा नशा कर लग पाया तो जे उन्हें 50 साल जीना तो कम से कम 35 साल तो सानू कमाई दो कोई 40-50 साल के नशा नहीं लाते पता भी ये 5-7 साल है ये कमाई घट देनी है तो नौजवान बच्चे ने बढ़ देनी जिदन सानू घरे समझ आ गई फिर साडा बच्चा
नशे वाले के विच भी तुरया फिरना साडे बच्चे नूं कोई नशे की आदत नहीं ला सकता। जिन्होंने आदत पईयां ने ना जिन्होंने मैं ये जरूरी नहीं जो नशे करने वाले बंदे माड़े होंगे आ। कई बार उन्होंने घर वालियां उन्होंने माँ बाप ये कहते हैं हीरे वर्गा साडा पुत है, सगों दूजे नालों चंगा ये आ, पर पता नहीं उन्होंने कित्थों लत लग गई। ना ये किहदा माड़ा करे ना ये किहदा बुरा करे, इन्हें कभी बेईमानी नहीं की, पर जे इस दलदल च फस गया ना आओ लत बनीए, नफरत ना करिए अपने भरावां नूं, उन्होंने इस दलदल चों बाहर कढण दा आपां यतन करिए ते बहुत कुछ बदलिया जा सकता। क्योंकि जो उन्होंने समझ आ गई कि जे ये जिहड़े महान साडे को इतिहास विच हीरे जिन्होंने साडे वास्ते कुर्बानियां कीतियां ने ते बहुत कुछ जिंदगी विच बदलिया जा सकता है। साहिबजादियां दी जिंदगी चों प्रेरणा लईए कि असीं अपनी जिंदगी नूं तब्दील कर सकते हैं। क्योंकि मंदा मूल ना की चाहिए देर लंबी नज़र हुण चाहिदा ते पता की सी इन्हां श्लोकां पौड़ियां दे अर्थ बना के ना मैं एक सुझाव दिंदा मैं हर कमेटी नूं अज जिहड़े आपां सरोपे दिंदे आ ना ये हौली हौली सानूं बंद करने चाहिए। ध्यान नाल सुणो तुहाडे विचों जे कोई किसी पिंड विचों प्रबंधक कमेटी का मैंबर आया तो मेरी हाथ जोड़ के बेनती है की करो कि शब्द लै लो जिवें जित सेविया सुख पाई है, शब्द लै लो उहदे अर्थ लिख लो प्रोफैसर साहब सिंह वाले इदा शील्ड बना लो मोमेंटो बना लो 150 200 बना के इकट्ठे गुरुद्वारा साहब रख लो। किसी ने पाठ कराया समागम कराया उस परिवार को सरोपा देने की बजाय वो शब्द की तस्वीर दो, वो अपने घर जाके लाओ, हौली हौली लोगों के घर में शब्द बाणी की विचार जाओ, कोई उठद्या बहद्या कोई शब्द दियां दो तुकां पढ़ो, कम से कम बाणी दियां दो तुकां ते याद होणगियां। अज जिहड़े असीं सरोपे दिंदे आ एक ते आउंदे पैसे ते आ ते जिहड़ा सरोपे का कपड़ा आउंदा कई वारी सिर दे उत्ते बन्नण दे काम भी नहीं आउंदा। सानूं अपनी सोच बदलण दी लोड़ आ हौली हौली ताकि घरां विच साडे शब्द दियां तस्वीरां जाण। कम से कम बंदा इदां बैठा सामने लॉबी च ड्राइंग रूम च शब्द लगा जित सेवियां सुख पाई है सो साहिब सदा संभाली है। हो सकता पता नहीं किहड़े वेले मन उखड़दा किते कोई बाण दी तोप दे सामने आ गई जदों आया भी मंदा मूल ना की चाहिए बंदा चलिया झूठी गवाही देन घरों पग बन के तुर लगा किते ध्यान पै गया सामने बाहर पिंड हुंदा गड्डी ले जांदा ना जो स्कूल का साइन बोर्ड आउंदा ना अपने आप एक्सीलेटर तो पैर चक्या जाता कि स्कूल के लगे मैं गड्डी तेज नहीं लगाउणी लिखे का असर होया ना। जे गड्डियां रोड के उत्ते एकदम हौली हो सकदियां तो तेरी जिंदगी भी हौली हो सकती आ, ये सुधर सकती आ जे बाणी की विचार आवे तो बुत पूज पूज के कमले हो गए। घरां फोटोआं तस्वीरां लाइयां मनो करपत गुरुआं दियां तस्वीरां लाओ शब्द दियां करांगे गुर मूर्त गुर बोलो जी गुर मूर्त गुर शब्द है। हाथ जोड़ के मेरी बेनती है सोहने तस्वीर बना के मिंटो बना के रख लो थले ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇ थले गुरुद्वारा साहब का एड्रैस होवे मान लो थले पूरा गुरुद्वारा का एड्रैस होवे थले भाई साहब का नंबर होवे उत्ते शब्द लिखिया होवे ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਲਾਓ ਇੱਕ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਣਾ ਫਲਾਣਾ ਪਿੰਡ ਫਲਾਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਦਾਂ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਏ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਸਰੋਪਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਿੰਟੋ ਦਿਆ ਕਰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਲੋਕ ਲੈ ਲਓ ਕੋਈ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਲੈ ਲਓ कोई दो तुकां शब्द दियां लै लो कोई श्लोक लै लो ताकि हौली हौली साडे घरां चों मनोकल्पत तस्वीरां लै जाण ते शब्द बाणी दीयां तस्वीरां साडे घरां च लग जाण। ये सानूं करना पैना है। एक दो गुरुद्वारे भी प्राण कर ते वेहा पासा ढाली है जिन्हां महान साहिबजादियां दे उन्हां महान गुरु के प्यारे सिखां दे असीं दिन मना रहे हां मुमताज वर्गियां उन्हां धीआं दे जिन्हां ने अपने बाप दी कही होई गल दे उत्ते फुੱਲ चढ़ाते उन्होंने फिर साहब नाल ना हारी है तो वेहा पासा ढाली उन्होंने वो पासा फिर चुन लिया कि मेरी साहब नालों टुटना चाहिए किस लाही उपर ढाली है। काम वो करिए जे तुम आत्मिक तौर पर नफा हो काम वो करिए रात को सौन लग्या सुरखरू होइए काम वो करिए रात को सौन लगे ऐन मन हल्का हो जिवें बंदा नहा के नहीं रात को फ्रैश होंदा थकिया टुटिया होवे बंदा रात को इशनान करके ऐन फ्रैश हो के सौंदा इदा जो तू चंगे काम करेगा तेरे मन उत्ते कोई बोझ नहीं रहेगा क्योंकि जो बोझ है ना मन के उत्ते दुनिया के सारे भार जेडे एक बने आ ते मन उत्ते कोई बुरे काम का बोझ है
इस बोझ नाल दा दुनिया ते कोई दूजा बोझ नहीं बनया। बाणी दा वाक है, नानक मन समझाई है गुरु कै शब्द सलाह राम नाम रंग रतिया भार ना भरम तिना भार भरमा दा भार वहमां दा भार है मन दे उत्ते। कई वारी नहीं कहते मेरे मन दे उत्ते बड़ा भार, वो भार काहदा हुंदा? कई वारी गल अपने अंदर हुंदी है, जो तुसीं गलत काम करना ही नहीं ते तुहाडे मन दे उत्ते कोई भार होना ही नहीं। बस फर्क सी जिदन साहिबजादे नूं नीहां चुनिया गया, ਜਿਹੜੇ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਿੰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਹਲਕੇ ਆ ਅੰਦਰੋਂ ਹੌਲੇ ਆ, ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਰਾਤ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਗਿਆ। 11 ਨਵੰਬਰ 1675 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਕਾਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਫਤਵਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਠੀਕ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹ ਮਨਾ ਪੈਸੇ ਬਦਲੇ ਸੋਨੇ ਬਦਲੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਫਾਹ ਲਾ ਆਇਆ। 26 ਨਵੰਬਰ ਠੀਕ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਾਜੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕਾਜ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਕਾਜੀ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਵਤੀ ਵੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਹੱਕ ਗਵਾਏ। ਇਹ ਭਾਰ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਪਾਸਾ ਧਾਰੀਏ ਕਿਸ ਲਾਹੇ ਉੱਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਨ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਸਾ ਚੁਣਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਸਾਡੀ ਮਾਰਗ ਨਾਲੋਂ ਵਿਥ ਨਾ ਪਵੇ। ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਵਰਗੀ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਦਕ ਦੀ ਮੂਰਤ ਤੇ ਬਾਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੁਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਣਾਈਏ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਖੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਦੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਭੁਲੇਖੇ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਸੋਹਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਇਹੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਬਾਣੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸੇਵਾਦਾਰ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰਾਂ ਨੇੜਿਆਂ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ, ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਲੀਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗੁਣ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਬਰਸੀਆਂ ਮਨਾਉਣ 'ਚੋਂ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਮਰਿਆ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਬਰਸੀ, ਦੂਜਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤਾ, ਤੀਜੇ ਦੀ ਬਰਸੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਨਗਰਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਪਿੰਡੋਂ ਪਿੰਡੀ ਇਹ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਕੱਲੀ ਫਿਰ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਈਏ, ਕਦੀ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਦੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਦੀ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਨੇ ਕੁ ਵਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ। ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ महला तीजा आनंद एक ओंकार हुआ सतगुरु मैं पाया। मन मेरा तू सदा रहो हर नाले, हर नालो सुमाचे साहेबा क्या नहीं करते रह, करता तेरा सब कुछ है जिसके सुभावे। सदा शिव सदा तुम्हारे
ਧਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ਸੁਣ ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਰਵਿਤ ਸਤਿ ਰਹਾ ਭਰਪੂਰੇ ਧਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਮ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹਮ ਬਾਤਾਰੀ ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੋ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਣੀ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੁਧਿਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਤੀਨੇ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰਨ ਹਾਰਾ ਦੁਖ ਹੰਤਾ ਸੁਖ ਰਾਸ ਤਾਕੋ ਬਿਗੜ ਨਾ ਕੂ ਲਾਗੈ ਜਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਆਗੈ ਅਰਦਾਸ। ਅਰਦਾਸ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸਾ ਹੋਈ ਸਹਾਇ। ਅਰਜਨ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਨੋ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਧਿਆਈਐ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਘਰ ਨੌਨ ਤੇ ਆਵੈ ਥਾਏ। ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਣਾ ਸਹਾਇ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹੱਟੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ ਦੇਖ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਡਟ ਕੀਤਾ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਏਸੀ ਦਿੱਤੇ। ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਤਨਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੜਵਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਸਿੱਖੀ ਸਦਕੇ ਸਾਸ ਵਾਸਾ ਸਨ ਨਿਭਾਈ ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸ੍ਰੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪ ਜੀ का नाम चित आवे चित आवण का सदका सर्ब सुख होवे। जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रछे आरे आयत देख ते फतेह। बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय। खालसा जी के बोल बाले बोलो जी वाहिगुरू। सिखा नूं सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाहत दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान। श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इशनान चौकियां झंडे बुंगे जुगो जुगे अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहिगुरू। सिखा दा मन नीवा मत उच्ची मत पत दा राखा है अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दातार जियो। गुरुद्वारा ननकाना साहिब होर गुर धामां गुरुद्वारियां जिन्हां नूं पंथ तो विछोड़िया गया तिन्हां दे खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान अपने प्यारे खालसा जी नूं बख्शो। हे निमाणियां दे मान सतगुरु ने ताणियां दे ताण सतगुरु ने ओटियां दी ओट सतगुरु ने आसरे हुंदे आसरे सतगुरु सच्चे पिता वाहिगुरू साहिब जीओ। धन धन श्री गुरु नानक देव महाराज साहिब जीओ। धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज साहिब जीओ। धन धन श्री गुरु ग्रंथ महाराज साहिब जीओ। धन धन शहीदो सिंघो महापुरुषो महाराज साहिब जीओ। आप जी अगे अरदास बेनती जोदरी है जी आप दा फरमान है। सूरा सो पहचानिए जो नर लील के गुरजा गुरजा घट करे कबहू ना साजे ते महावाका अनुसार। गुरुद्वारा शहीदा ਸਿੰਘਾ ਵਿਖੇ कई रोज तो कथा समागम आरंभ करवाए हुए हंचे पातशाह जीओ। माता गुजर कौर जी 4 साहिबजादे समूह शहीदां नूं समर्पित
कथा समागम करवाए जा रहे हैं। सच्चे पातशाह आप जी ने भाई साहब भाई सरबजीत सिंह धुंदा पासों कथा विचारा सरवण कीतियां, ना सब दियां 6 पौड़ियां दे जाप होए, बाणी पढ़दे आ, कथा विचारा करदे आ, अनेका प्रकार दियां त्रुटियां हो गईयां होणगियां, अणजान बच्चे जान के खिमा करनियां, अगे वास्ते शुद्ध स्पष्ट सेवा करन दा बल ते उद्यम बख्शिश करना। आईयां संगतां दियां हाजरियां 3 फुल भेटावां अपने दर प्रवान करनियां, कदम कदम लेखे विच पातशाह जी सिला दाते पवित्र कड़ाह प्रसादियां देगा हाजर हन। आप दे दर प्रवान होन, प्रवान होइयां दिगचे पातशाह संगत वरताउण दी आग्या बख्शो जो सके। आप दा स्वास नाम वाहेगुरु 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 जपो। सच्चे पातशाह जीओ आईयां संगतां नूं पवित्र हुक्मनामे बख्श के निहाल करो। सही प्यारे मेलो जिन्हां मिलिया आप दा नाम चित आवे, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। दोहराया गया भई अकाल की बड़े चलाओ पंथ, सब सिखण को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ की मानियो प्रगट रागी दे, जो प्रभ को मिल खोज है खोज शब्द में दे, राज करेगा खालसा आकी रहेगा बोले, हाल होए सब मिलेंगे बचे समझो। वाहेगुरु नाम निहाल है चढ़े सोते पार, जो सदा कर सेव वाहेगुरु पार उतारनहार, जो शरदा कर सेव वाहेगुरु पार उतारनहार। बोले सो निहाल। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। की सब बेनती अपनी भगति लाए, सुकहो टल गुर सेविय, अहनस सहज सुपाए, दर्शन परसय गुरु कै, जन्म मरण दुख जाय, सतनाम श्री वाहेगुरु साहेब जियो। तनासरी महला पंजवा, तुम दाते ठाकुर प्रितपालक, नायक खसम हमारे, निमख निमख तुम ही प्रितपालो, हम बारक तुम्हारे तारे, तुम दाते ठाकुर प्रितपालक, नायक खसम हमारे, निमख निमख तुम ही प्रितपालो, हम बारक तुम्हारे तारे। जेहवा एक कवन गुण कहिए, बेसुमार बेअंत स्वामी, तेरो अंत ना किन ही लहिए। रहाओ कोट अपराध हमारे खंडो, अणक विधि समझाओ, हम अज्ञान अल्प मत थोरी, तुम अपन बिरद रखाओ, तुमरी
तुम ही सजन सोहले राखो राखन हार दयाला नानक कर के बोले। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੀਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਖੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ। ਚੱਲ ਚਮਕੌਰੋਂ ਮਾਛੀ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਲੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿਛਾਲੇ ਐਸਾ ਵਕਤ ਝਾੜਾ ਫਾੜੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸਤਿ ਨਿਗੀਰਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਬਾਣੀ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਦਰਦ ਕਹਾਣੀ, ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਦੇ ਨੈਣਾ ਚੋਂ ਵੀ ਸਿੰਨ ਪੈਂਦਾ ਏ ਪਾਣੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਧੰਨ ਸੀ ਉਸਦਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਕਹੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਰਾਏ ਕੋਟ ਵਿੱਚ ਨੂਰੇ ਮਾਹੀ ਕਬਰ ਜਦੋਂ ਸੀ ਆਨੀ, ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਦਰਦ ਕਹਾਣੀ, ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਦੀ ਨੈਣਾ ਚੋਂ ਵੀ ਸਿੰਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ। ਦੇਸ਼ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਸਨੇ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੰਵਾਰੇ, ਚੰਦ ਅਤੇ ਯੂਸਫ ਤੋਂ ਸੋਹਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਰੇ ਚਾਰੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਸਿੰਘ ਨਾ ਸਜੀਏ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸਿਆਣੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਦਰਦ ਕਹਾਣੀ, ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਦੇ ਨੈਣਾ ਚੋਂ ਵੀ ਸਿੰਨ ਪੈਂਦਾ ਏ ਪਾਣੀ, ਸਿੰਨ ਪੈਂਦਾ ਏ ਪਾਣੀ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਚੋਣਾ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ। ਪਾਲਕ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਟਾਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵਾਲੇ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰੂਪਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਮੂਹਰੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਆਉਣਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਹੋਣੇ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਸੇਧ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਭਜਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਜੀ ਵਰਤਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਤੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਾਰ ਸਾਧ ਵਰਗੀ ਗੁਣ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਾਰ ਦੰਡਾਤ ਗੁਣ ਵੱਡਾ ਹੈ ਰਹਾਉ। ਆਪ ਹਰ ਸਾਧ ਜਾਣ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਚੱਲਹਿ ਟੁੱਟਹਿ ਦੁਖ ਪਾਵਹਿ, ਜਮਕਾਲ ਸਹਿ ਸਿਰ ਡੰਡਾ ਹੈ। ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਨ ਦੁਰਜਾ ਮਨ ਸਭ ਖੰਡਾ ਹੈ। ਅਵਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਪਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਹਮ ਗਰੀਬ ਮਸਕੀਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ, ਰਾਤ ਰਾਤ ਵੱਡ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਆਧਾਰ ਟੇਕ ਹੈ, ਹਰ ਨਾਮੇ ਹੀ ਸੁਖ ਮੰਡਾ ਹੈ। ਕਾ ਬੋੜੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ।
ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਕੀ ਬੇਰਾ ਇਹਾ ਖਾਟ ਚਲੋ ਹਰ ਲਾਹਾ ਆਗੇ ਬਸਨ ਸਵੇਲਾ ਔਰ ਘਟੇ ਦਿਨ ਸੋ ਰਹਿਣਾ ਰੇ ਮਨ ਗੁਰ ਮਿਰਗਾਦ ਸਵਾਰੇ ਇਹੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿਕਾਰ ਸੰਸਹਿ ਮੈਂ ਤਰਿਓ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਸੇ ਜਗਾਏ ਪਿਆਵੇ ਹੋ ਰਸ ਕਥ ਕਥਾ ਤਿਨ ਜਾਨੀ ਜਾ ਕੋ ਆਏ ਸੋਈ ਵਿਹਾਜੋ ਹਰ ਗੁਰ ਤੇ ਮਨੈ ਬਸੇਰਾ ਨਿਜ ਕਰ ਮਹਿਲ ਪਾਵੋ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ ਬਹੁਲ ਨ ਹੋਏ ਕੋ ਮੇਰਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤੇ ਸਰਦਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹੈ ਸੁਖ ਮੰਗੈ ਕੋ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਦੂਰੇ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤੇ ਸਰਦਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹੈ ਸੁਖ ਮੰਗੈ ਮੁਖ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਦੂਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਆਪ ਜੀ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਦੁਦਰੀ ਜਲ ਦਾ ਫਰਮਾ ਪੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਆਂ ਜੋ ਆ ਦੀਨ ਕੇ ਢੇਰ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਖਤਮ ਕਬੂ ਨਾ ਛੱਡ ਤੇ ਮਹਾਵਾਕਾ ਸਾਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ अब जिस सुख आसन कीर्तन के पाठ है वाणी पढ़ने का होता है कि हम जान क्षमा करने के बाद सो दुष्ट पक्षी का खंडा बात उधर में करना आप जिस के पास सुख आसन कीर्तन के पास सचखंड ज्ञान दिया गया बख्शो संग हाजिर हम से प्यारे मेलो जिन्हें मेरा दा नाम चेता है नानक नाम ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਈ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह बोले सो निहाल ਤਿਨ ਹਾਰ